I'm going to start with the harm principle. In political science, in political term, we have freedom, we have the liberty. लेकिन freedom और liberty होने के साथ साथ we talk about the limits, we talk about the competence, we talk about the consequences of imposition. Then we also have to engage with another issue that John Stuart Mill stated so eloquently in his essay on liberty. In the discussion in political theory, it is called the harm principle. अब ये जो harm principle है, ये जो हानि का सिद्धांत है, वो क्या कहता है आखिरकार? The principle is that the sole end for which mankind are warranted individually or collectively in interfering with the liberty of action of any of that number is itself protection, that the only purpose for which power can be rightly exercised over civilized community against his will is to prevent harm to others. इसका तात्पर्य ये होता है कि किसी भी काम को करने की स्वतंत्रता में, चाहे वो व्यक्ति सिंगल हो या सामूहिक रूप से किसी के काम में बाधा डालने के लिए या हस्तक्षेप करने के लिए इकलौता लक्ष्य होता है आत्मरक्षा. ठीक है? The purpose for which power can be rightly exercised over a civilized community against his will is to prevent harm to others. और हमारी जो civilized society है, सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना होता है या बचाना हो सकता है. We should not hamper the freedom of others. Basically, यहाँ पर आपको एक फोटोग्राफ दिखाई पड़ रहा है, आपकी बुक में दिया हुआ है. उस फोटो के मुताबिक why does he talk about mankind, why not about the women? So if we talk about the man race or the human race, we are talking mankind means the humankind, the human race. ठीक है? तो वहां पे महिलाएं भी उसमें शामिल हैं. In a nutshell. Now, the harm principle Mill introduces here an important distinction between the two. He distinguishes between actions. हमारे जो actions होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. एक व्यक्तिगत अपने ऊपर और एक अदर रिगार्डिंग. एक कुछ काम हम करते हैं जो अपने लिए करते हैं और कुछ काम जो होता है वो दूसरों के लिए होता है. Suppose you are studying, I'm teaching you. This is your act is for self-regarding. You are studying for yourself, not for your parents. But I am teaching you. Of course, my self-regarding is there that I am working. But this act of mine teaching you is for you. तो बहुत सारे काम हम अपने लिए करते हैं और बहुत सारे काम हम दूसरों के लिए करते हैं. यहाँ पर उनका कहना ये है, किसका? मिल का यहाँ पे कहना है कि जो हम अपने लिए कार्य करते हैं उसमें किसी बाहरी, किसी एक्सटर्नल फोर्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है. He argues that with respect to actions or choices that affect only oneself. अब आप जैसे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको ही अफेक्ट करेगा, ये इसका फायदा आपको ही होगा, इसमें सरकार का कोई फायदा नहीं है. ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है. The state or any other external authority has no business to interfere.
इसमें किसी का फायदा नहीं है, आपके पेरेंट्स का भी उतना फायदा नहीं है डायरेक्टली बोलेंगे तो। इसलिए ये आपका जो काम है ये सेल्फ रिगार्डिंग काम कहलाएगा। ठीक है, मिल का कहना है, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो दैट्स माय बिजनेस, आई डू व्हाट आई लाइक, और हाउ डज इट कंसर्न यू इफ इट डज नॉट अफेक्ट यू। मेरी पढ़ाई आपको तो मायने नहीं रखती है, ठीक है, तो मेरा मन होगा मैं करूंगा, मेरा मन होगा मैं नहीं करूंगा, ये मेरा काम है, मैं इससे वैसे करूंगा जैसे मैं चाहूंगा, जैसे मेरा मन चाहेगा। Are you understanding? Yes. So in contrast with respect of actions that have consequences for other actions which may cause harm to them, there is some case for external interference. After all, if your actions cause me harm, then surely I must be saved from such harm by some external authority. अब आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अफेक्ट होगा, लेकिन आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई करते करते दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, दूसरों की किताबें फाड़ रहे हैं, इनडिसिप्लिन फैला रहे हैं क्लास में, तब क्या होगा? सपोज वन एग्जाम्पल, तमन्ना इज हार्म्ड बाय समवन इन द क्लास, तो जरूरी है कि some external authority should come and safeguard the child. Am I right? So it is very necessary for authorities to interfere in that disciplinary case. In this case, it is the state which can constrain a person from acting in a way that causes harm to someone else. आप किसी की मार पिटाई करते हैं तो वो एक लीगल केस बन जाता है या नहीं बन जाता है? तो स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। स्वतंत्रता का तात्पर्य ये भी नहीं है कि आप अपने हाथ पैर चलाएंगे और फिर दूसरों को हानि पहुंचाएंगे, मारपीट करेंगे। ठीक है, तो स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार के फायदे में किसी भी तरह से किसी व्यक्ति का नुकसान करेंगे, किसी एक व्यक्ति का नुकसान करेंगे। स्वतंत्रता का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है। A freedom, as freedom is at the core of human society, of course, human society के अंदर स्वतंत्रता जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। It is in the core, core मतलब केंद्र में। ठीक है, it is so crucial for dignified human life. It should only be constrained in social circumstances. स्वतंत्रता जो है वो गरिमापूर्ण तरीके से इस्तेमाल की जानी चाहिए, उसको मर्यादित तरीके से इस्तेमाल करना है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसलिए बड़ी ही खास स्थितियों में इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। स्वतंत्रता के ऊपर there is no constraints, there is no limitation, but if you are crossing the boundaries of being a human, then constraints are there, and in such circumstances outside constraints are imposed. आपके ऊपर बाहरी तौर से कुछ ऐसे रोक टोक लगाए जाते हैं जो कि आपकी स्वतंत्रता को खत्म करता है, रोकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो कोई बहुत सीरियस किस्म का हो तब, ऐसे नहीं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई अपने पड़ोस में बहुत लाउड म्यूजिक प्ले कर रहा है, आपको, आप अगर बीमार हैं तो आपको नुकसान हो रहा है, आप अगर नहीं भी बीमार हैं, अगर आपके उस लाउड म्यूजिक से प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल द प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक इन एन apartment building should bring only social disapproval from all other residents of the building. They should not involve the police. They should indicate their disapproval of the inconvenience that playing loud music has caused them.
तो अगर तेजी से म्यूजिक चलाया जा रहा है तो आप उसका डिसअप्रूवल दे सकते हैं, आप ये प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये गलत है, इतनी तेजी से म्यूजिक मत चलाइए, उससे दूसरों को परेशानी होती है। परहैप्स रिफ्यूजिंग टू ग्रीट द पर्सन हु प्लेज द म्यूजिक disregarding the harm it is causing others. ठीक है? मैं कब से कोशिश कर रही हूँ। Playing loud music causes is that of preventing those in other apartments for talking or sleeping or listening to their own music. अगर कोई दूसरा म्यूजिक सुनना चाहता है तो उनको प्रॉब्लम होगी, अगर वो कुछ और काम करना चाहते हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये एक डिसअप्रूवल किया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं किया जा सकता है। दिस इज अ माइनर हार्म। जो दूसरा व्यक्ति है, जो पड़ोसी है, जो तेज म्यूजिक सुना रहा है, उससे ये एक छोटा सा नुकसान है। ठीक है? अब एंड शुड ओनली प्रोवोक सोशल डिसअप्रूवल, इट इज नॉट अ केस फॉर लीगल पनिशमेंट। आपने तेज म्यूजिक चला लिया तो एक लीगल पनिशमेंट उसमें नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें किसी व्यक्ति को आहिस्ते से बोल के मनाया जा सकता है, उस म्यूजिक को बंद किया जा सकता है। ठीक है? यहाँ पे हार्म प्रिंसिपल, हम इतना हार्म ना पहुंचाएं उस व्यक्ति को, इतना नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा और उसके लिए किसी लीगल पनिशमेंट का प्रावधान भी नहीं है। Now, constraining actions by the force of law should only happen when the other regarding actions cause serious harm to definite individuals. Otherwise, society must bear the inconvenience in the spirit of protecting freedom. अब जब बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में कोई कानूनी दंड तो नहीं है, और कानूनी दंड के लिए उचित मामला भी नहीं है, लेकिन कोई और कार्यों से कानूनी शक्ति से प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाएं। अभी तो कोई गंभीर नुकसान नहीं हो रहा है। पीपल शुड बी रेडी टू टॉलरेट डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड द डिफरेंट इंटरेस्ट, सो लॉन्ग एज दे डू नॉट कॉज हार्म टू अदर्स, बट सच टॉलरेंस नीड टू बी एक्सटेंडेड टू extended to views and actions which may put people in danger or foment hatred against them. अब जिससे बहुत लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसे एक्शन से थोड़ा सा लोगों के बीच में एक हेट्रेड तो जरूर आ जाएगी। वो हेट्रेड भी नहीं आनी चाहिए। अब इस तरह की हेट्रेड जो होती है, वो हेट्रेड बताता है कि hate campaigns cause serious harm to the freedom of others, and actions that cause serious harm are actions on which constraints can be imposed. अब जहां पे बहुत सीरियस हार्म हो रहा है, वहां पे कंस्ट्रेंट्स जो है वो लगाए जा सकते हैं, but we must make sure that the constraints imposed are not so severe that they destroy freedom itself. ऐसे भी रोक टोक नहीं होने चाहिए कि वो पूरी तरह से स्वतंत्रता का नाश कर दें। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, we must not ask for life imprisonment for those who only conduct hate campaign. नफरत को फैलाते हैं ना, समाज के नाम पर नफरत फैलाते हैं, कास्ट के नाम पे नफरत फैलाते हैं, ऊंच नीच के नाम पर नफरत फैलाते हैं, रंग भेद के कारण नफरत फैलाते हैं। अभी पीछे आपने अमेरिका में भी देखा है, बहुत सारे जगह पर अपार्थाइड अभी भी चल रहा है। तो ऐसे कोई सीवियर होता है, एक्शंस होते हैं, वहां पर हम जरूर कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, वहां पर लीगल एक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन we must not ask for life imprisonment for those who only conduct the hate campaign. केवल वो hate campaign चला रहे हैं, उसके लिए हम बहुत लाइफ इम्प्रेशनमेंट नहीं लगा सकते। मे बी सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट, उनके मूवमेंट के ऊपर रोक टोक लगाई जा सकती है, उनके राइट्स को जो है कर्टेल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है कि आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं, उनको वार्निंग्स इशू की जा सकती है। ठीक है? स्टेट जो है वो वार्निंग इशू कर सकता है कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इन द कॉन्स्टिट्यूशनल
discussion in India, the term used for such justifiable constraint is reasonable restrictions. हमें जो है वो भारतीय संविधान के अनुसार सोच समझकर न्यायपूर्ण सीमाएं लगानी चाहिए. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए. न्यायपूर्ण यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जिनको कि माना जा सके, जिन पर अमल किया जा सके. The restrictions may be there, but they must be reasonable. That is capable of being defended by reason, not excessive, not out of proportion to the extent of being restricted. Since then, it would impinge on the general condition of the freedom in society. We must not develop a habit. Such habit is detrimental to the freedom. हमें हर समय किसी की स्वतंत्रता की कटौती नहीं करनी चाहिए, बल्कि बाहर निकाल देगी. किसी का व्यवहार बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है. तो ऐसा व्यवहार हो जिसको कि माना नहीं जा सके, तभी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. अन्यथा किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं. हमें जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, जो भी प्रतिबंध लगाने हैं, उनकी आदत नहीं विकसित करनी चाहिए कि नहीं हम तो ये काम करेंगे, दूसरा म्यूजिक प्ले नहीं करेगा. ठीक है. फिर क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी. राइट. दूसरा हम ये काम कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है. ऐसी आदत हमको नहीं डालनी चाहिए. और अगर हमने ऐसी आदत डाल ली तो वो स्वतंत्रता के ऊपर बहुत बड़ा खतरा होगी. ठीक है. So negative and positive liberty we will do tomorrow. Okay? Could you understand? Yes, ma'am.